होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल और हम जो थे होमो सैपियंस थे। आवर एंसेस्टर्स वर एक्चुअली बंदर, सो हाउ अदर बंदर आर नॉट बीइंग ह्यूमन। विदिन 15 मिनट्स आपका अच्छा खासा एक स्पीच तैयार होगा। जानवर को मार के आग में फेंक दो, फिर जलने लगा। ओपिनियन थे, ऑल द थिंग्स यू रोट देयर एक्चुअली। सच में इट वाज फैसिनेटिंग दैट आपने दिया। बट एक चीज आपने नोटिस किया, डिड यू नोटिस वन थिंग, दैट वाज विदिन 15 मिनट्स आपका अच्छा खासा एक स्पीच तैयार होगा। बट वेन एवर आई से टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज कम ऑन, यू हैव दिस टॉपिक, आपके पास ये टॉपिक है, घर से प्रिपेयर करके आना है, क्लास में आते ही कहते हैं सॉरी सर आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, सॉरी सर आई हैव नॉट डन। हैव यू एवर फेल्ट सच? इट मीन्स दैट इससे यही होता है जब 15 मिनट में आप अच्छी खासी स्पीच तैयार कर सकते हो, मतलब घर पे जाके आपके पास जो 24 घंटे होते हैं, व्हाट कैन यू डू इन दैट एक्चुअली? इट मीन्स दैट यू डू नॉट वर्क देयर हार्ड एज यू डिड नाउ हियर। इतना हार्ड वर्क नहीं करते घर पे जितना आपने यहाँ किया। डू यू एक्सेप्ट इट और नॉट? इट इज आई थिंक इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट योर हार्ड वर्क एक्चुअली यू रोट नाउ टुडे हियर, अमेजिंग एक्चुअली थिंग्स यू रोट टुडे व्हिच वाज हिट एंड रन एक्चुअली, बहुत जबरदस्त था। लेट मी टेल यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एक्चुअली यू रीड नाउ, ऑन द बेसिस ऑफ imagination. It is a great thing actually for us to understand about the imagination that I'm talking about. Imagination is not a normal or actually it is the mean that ability to just think something, picturize in the future exactly or anything else. That is called actually imagination we have. Just you imagine something actually in your mind. It is the ability of our mind actually that we imagine and do something. The evolution of the human happens, it is just because of the imagination. Clear not? Yes? जो भी अभी तक हम ह्यूमन बन के आए हैं, कहते हैं हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे, फिर ऐसे कर करके हम लोग ह्यूमन बने। फिर सम पीपल आस्क द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट इफ आवर एंसेस्टर्स वर एक्चुअली बंदर, सो हाउ अदर बंदर आर नॉट बीइंग ह्यूमन? द क्वेश्चन इज दैट ना, कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो आज के जो बंदर वो हमारी तरह क्यों नहीं भर रहे हैं? द रीजन इन दैट इट्स अ हार्ड क्वेश्चन फॉर देम हु डज नॉट नो एक्चुअली, who do not know about this, but it is easy for them who knows about it. Clear? So we need to understand actually about the imagination, that you must have the power of imagination, because it will give you really great and enthusiastic think and the mental ability to do something better actually if you have the power of imagination. The imagination is the key to innovation. What is that? Imagination is the key to innovation. Again please, imagination is the key to innovation. Whenever you have imagined something, you have absolutely just created something or the other. If I talk about any scientist, I'm talking about whether that is Thomas Alva Edison. If you talk about any, actually I'm talking about the scientist like our APJ Abdul Kalam, Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam, anyone I'm talking about, right? Everybody thought something in their past life, imagined something, and after that they created something or the other, right? Once upon a time, the story starts from actually the Thomas Alva Edison. Actually he was thinking about that. He was thinking that how actually a bird is flying exactly. What is the reason behind that? He was doing some normal things that I think the bird is eating like insect and germs and all. That's why the bird is flying. So what is the reason behind that? Then he gave to his Nokrani to insect and all. She ate and she became sick. She did not fly. She could not fly there. But he was thinking, it was the imagination. What can we do actually for that exactly? So we need to understand the imagination, the power of imagination. The people imagine that actually what happens. Like stock market में भी क्या करा जाता है? Predict करा जाता है ना कि ऐसे ऐसे करके होएगा. Something like that. It is all about the imagination. Because imagination is the key to innovation. If you want to innovate something new, think. If you want to explore something new, think. You have to imagine your mind, because it is the great things actually for us to imagine. As I was talking about the evaluation of the evaluation, this is called evaluation. ठीक है ना? It happened actually just because of the imagination. How it was happening actually? As I just told you that people used to say that हमारे पूर्वज क्या थे? Our ancestors were बंदर, and we are now the human. तो अदर बंदर क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं ह्यूमन में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एग्जैक्टली? द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली वी हैड द इमेजिनेशन. हमारे पास इमेजिनेशन थी. नाउ यू विल थिंक दैट अच्छा इनके पास, बंदरों के पास इमेजिनेशन नहीं है. दे हैव वेरी लिटिल बिट एक्चुअली. लेट मी टेल यू हाउ. इन स्टार्टिंग एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट तो व्हेन ह्यूमन स्पीसीज वाज देयर, जब ह्यूमन की स्पीसीज थी जितने भी, ठीक है ना, उसमें से कुछ थे जैसे होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल और हम जो थे होमो सैपियंस थे. अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 नॉर्मली थी जो हमारी कैटेगरी मतलब ह्यूमन की कैटेगरी में लोग थे. ह्यूमन की थी क्या? होमो इरेक्टस थे, होमो नियंडरथाल थे और क्या थे? हैबिलिस थे और सैपियंस थे. ऐसे करके लगभग 6-7 कैटेगरीज थी. देयर वर 6 or 7 कैटेगरीज नॉर्मली, व्हाटएवर आई नो एक्चुअली अबाउट दैट.
इसमें से हमसे ज्यादा पावरफुल तो नियंडरथाल थे। एज वी आर व्हाट, वी आर द होमो सैपियंस, वी बिलोंग टू दैट स्पीसीज। ये हमसे पावरफुल कौन थे? नियंडरथाल। वो हमसे बहुत पावरफुल थे, बड़ा बाय हेड था, लंबे चौड़े थे, खतरनाक तरीके से, हम भाग जाते थे उनके सामने। बट वी हैड ओनली वन थिंग, दैट वाज द एक्चुअली imagination. We had a great power starting in our mind, that actually we had a great power of imagination, that we did everything in that way actually. When what happened, किसी भूकंप का किसी कारण actually क्या हो रहा था, जंगल में आग लग जा रही थी। By that fire actually what was happening, the animals were going toward the fire and by that they were totally fired in that actually. वो लोग उसी में जल जा रहे थे, animals and birds and all actually. And जब animals जल जा रहे थे, then what was happening, यही सब लोग जा रहे थे, ये लोग खा रहे थे। वाह यार कितना टेस्टी लग रहा है, जबरदस्त यार ये तो आग में। फिर कहीं आग लगती थी, जानवर को मार के आग में फेंक दो, फिर जलने लगा। उसके बाद फिर जब जल लगा, जब खाने लगे, फिर स्वादिष्ट लगा, यार ये तो जला, मतलब इस तरह से खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो जबरदस्त। फिर उन लोगों ने क्या किया, अच्छा ये आग बन कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचा होगा उन्होंने, ये क्या है सोचा होगा, इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। सोचा होगा पहाड़ से क्या कर रहा है, एक पत्थर बड़ा सा गिर रहा है, जब गिर रहा है उसमें चिंगारी फिर यहाँ गिरा चिंगारी, कोई फेंक रहा है, किसी को मार रहा है, फेंक के गिरी, चिंगारी निकल गई। फॉर एग्जाम्पल it was happening actually, the flame was happening from there, sparkles were there, then what happened, उसे निकले। अच्छा ऐसे होता है, फेंकने से रगड़ला, फ्रिक्शन लगा, then निकल गया। let's do the same thing, for example उन्होंने किया होगा, मार दिया ऐसे करके, ठीक है ना, निकल रही आग, वो भाई साहब ऐसे निकल रही, चलो हम भी करते हैं समझे। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। क्या करने लगे उसके बाद, इमेजिनेशन से ये बना दिया। देन पहिए का आविष्कार कैसे हुआ होगा, अबाउट दैट, इट इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। हाउ, फॉर एग्जाम्पल दैट कोई ऐसी गोल चीज होती है, पहाड़ से गिर रही है, ऐसे ऐसे करके बहुत तेजी से भाग रही है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड कोई ऐसी लकड़ी जो ऐसे है, वो गिर रही है तो ऐसे ऐसे करके जा रही है, कोई व्यक्ति गिर रहा है ऐसे करके जा रहा है, तो उन्होंने सोचा होगा भाई साहब अगर ये कोई ऐसी चीज जो इस शेप में रहे, इफ दैट इज फॉलिंग सो दैट विल गो अहेड वेरी फास्ट एग्जैक्टली, लेकिन कोई उल्टी फुल्टी ऐसी चीज विल नॉट गो अहेड एक्चुअली, वो आगे नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा अच्छा गोल चीज रहेगी, ऐसे रहेगी तो ठीक है, अब ऐसे ऐसी चीज रहेगी ये तो ज्यादा नहीं भागेगी, बट ऐसी चीज रहेगी तो ज्यादा तेज भागेगी। दे वुड हैव व्हाट इमेजिन्ड, उनके पास क्या थी, दे हैड इमेजिनेशन। उन्होंने सोचा होगा ऐसा हुआ, इसलिए किसका आविष्कार कर दिया, पहिए का आविष्कार किया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक अबाउट नाउ, अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन तो कर रहा हूँ। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड द इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। जब आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी लेस हो जाती है, दिमाग में बहुत सारा चीजें होती है, बट एट दैट टाइम नहीं होता, हम इमेजिन नहीं कर पाते, वो नेक्स्ट वाला क्या था, ये क्या था, वो क्या था, वो क्या था, ये रूल क्या था, वो क्या था। इट इज ऑल अबाउट दैट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द वी नीड द इमेजिनेशन। जैसे ही आपको मैंने टॉपिक दिया, ऐसे गिव यू द टॉपिक नाउ हियर, यू स्टार्टेड थिंकिंग ओवर दैट। जब आप लिख रहे थे क्या इमेजिन कर, भाई क्या हुआ था, हाँ क्या लिख सकते और क्या कर सकते, सोच रहे थे, थिंकिंग और नॉट, यही ब्लॉक कर दीजिए, क्या लिखोगे, कुछ नहीं, क्लियर नॉट। सो वी हैव टू imagine because imagination is the key to innovation. If you want to just innovate something new, you have to imagine it now. Please allow, try to understand. Do you get or not? तो प्लीज इमेजिन करिए, बहुत ही खतरनाक चीज है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश ना, किसी भी रूल्स को पढ़ना है, किसी भी चीजों को करना है, यू हैव टू इमेजिन इन अ प्रॉपर वे सो दैट ये अच्छा खासे तरीके से आगे चला जाए। अभी गेटिंग पॉइंट्स ऑल ऑफ यू, सो दिस एंड देयर प्लीज इमेजिन दिस। आपको देखो, approximately 4-5 days ago actually, not 1 week ago I think, I started just giving all of you the stories of English. Do you remember? Yes. Yeah, I was giving up to 5 to 6 stories I give. Still I मेरे पास 20, 25, 30 stories भी बना रखी मैंने, motivational great stories, and I gave you also. आपने सीखा भी, approximately 5 to 6 stories. Do you know? I gave you this story, then I was saying that please जो story मैंने बताई अभी आप इमेजिन करो और बोलो, सोचो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या, मेन पॉइंट आपको क्या करना है, रखना है, बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप उसको आगे कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे स्टोरी ही नहीं याद है, इसका मतलब है कि आप स्टोरी नहीं याद है, मतलब आपको उसमें इमेजिन नहीं करा। अभी जस्ट आई वाज वाचिंग अ वीडियो, एक वीडियो मैंने देखा एक्चुअली, अगर आपको आईक्यू बढ़ाना, आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंस, क्या होता है, इंटेलिजेंट कोसेंट। कोसेंट समझते हैं ना, कोसेंट समझते हैं, नहीं समझते हैं, चलो आज समझा देता हूँ। देखो ये 5 होता है, ये 12 होता है, इसमें भाग दिया 2 से, यहाँ 10 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, ऐसा बोलते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं का भाजक, हाँ ये इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। ऑप्शन माइट, यस, दीज थिंग्स आर देयर। इसको बोलते हैं कोसेंट, क्या बोलते हैं, कोसेंट, वही है इंटेलिजेंट कोसेंट, इसका फुल फॉर्म होता है आईक्यू का।
ही वाज टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली, अगर आपको अपना IQ बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट ट्राई टू before sleeping, half year before sleeping, exactly half hours, you just sit down on your bed and all, and then try to think about your whole day there, what did you do, all the things from morning to evening. Think